we will turn to the book of Hebrews chapter 7. इब्रानियों की पुस्तक 7वां अध्याय निकालेंगे। In the previous chapter, chapter 6, we learned about the theme on pressing on to perfection. और 6वें अध्याय में हमने उस विषय पे देखा कि हम सिद्धता की ओर कैसे आगे बढ़ते हैं, Or we can say growing to spiritual maturity. और दूसरे शब्दों में आत्मिक परिपक्वता की ओर बढ़ना। You may be remembering we heard about two examples there. One is growing from elementary teaching to advanced learning. और वहां पर हमने दो प्रकार की बातें हम देखते हैं कि पहले जो मूलभूत जो बहुत ही शिक्षा जो होती उससे आगे की शिक्षा की ओर बढ़ना। Another example we may be remembering, it is not enough to construct a foundation, but we had to diligently construct the superstructure above it. और दूसरी बात हमने जो देखा कि हमें केवल उस नींव को बांध कर नहीं बैठना है, लेकिन उसके साथ उस इमारत को उसके ऊपर खड़ी करना है। Towards the end of the chapter, we also heard that Jesus is our forerunner. और उस अध्याय के अंत में हमने ये भी देखा कि यीशु मसीह हमारा अग्रदूत है। Now, chapter 7 of Hebrews, we can say, portrays the difference between the old covenant priesthood and the new covenant priesthood. और इब्रानियों 7 अध्याय में हम देखते हैं कि पुराने नियम का जो याजक पद है और नए नियम का याजक पद है, उसके अंदर का अंतर वो दिखाता है। Here, in almost throughout this chapter, one name is frequently used, a name called Melchizedek. और पूरे अध्याय के अंदर एक नाम जो है वो अक्सर यहाँ पे लिखा गया है, जो मलकीसिदक का नाम है। We read about Melchizedek first in the book of Genesis. उत्पत्ति की पुस्तक में सबसे पहले हम मलकीसिदक के बारे में सुनते हैं। Genesis chapter 14. उत्पत्ति 14 अध्याय 17 to 20. 17 से 20 वचन। Here we read that when Abraham came back after fighting a battle with 5 kings. और अब्राहम जब 5 राजाओं के साथ युद्ध करके लौटा। So after that, Abraham was weary and tired. At that time, unexpectedly, a person disappeared in front of him. और यहाँ पर देखते हैं कि अब्राहम जो है बहुत ही युद्ध करने के बाद लौटने के बाद बहुत ही थका हुआ था, और अनपेक्षित रीति से उसके सामने ये व्यक्ति प्रकट होता है। That was the person Melchizedek. और वो है मलकीसिदक। So this Melchizedek offered Abraham some food and drink, which they were very much in need of. और यहाँ पर मलकीसिदक ने अब्राहम को कुछ रोटी और दाखमधु लेकर आया था, जिसकी अधिक जरूरत अब्राहम को थी। And after that, Melchizedek blessed Abraham. उसके बाद मलकीसिदक अब्राहम को आशीष देता है। That blessing words, a wonderful words in Genesis chapter 14, 19, and we read, he blessed and said, "Blessed be Abraham, O God Most High, possessor of heaven and earth, and blessed be God Most High, who has delivered your enemies into your hand." और 19 वचन, और उसने अब्राहम को यह आशीर्वाद दिया, परम प्रधान परमेश्वर की ओर से, जो आकाश और पृथ्वी का अधिकारी है, तू धन्य और धन्य है परम प्रधान परमेश्वर, जिसने तेरे द्रोहियों को तेरे वश में कर दिया है। So in gratitude, Abraham returned, gifted Melchizedek 10% of all the spoil from the war. और धन्यवाद के साथ अब्राहम ने जो कुछ उसने वहां से लूट कर लेकर आया था, उसका 10वां अंश मलकीसिदक को दिया। So soon after that, Melchizedek disappeared from the scene. और वहां से, उस चित्र से तुरंत ही उसके बाद मलकीसिदक गायब हो जाता है। Melchizedek was later mentioned in Hebrew chapter 5 and chapter 6 also. और उसके बाद मलकीसिदक का संबंध जो है इब्रानियों 5 और 6 अध्याय के अंदर लिखा गया है, other than chapter 7. और 7वें वचन के साथ। So there are a few things mentioned about Melchizedek. और यहाँ पर मलकीसिदक के बारे में कुछ बातें लिखी गई है। He is mentioned as a king of peace. और यहाँ पे उसको शांति का राजा करके कहा गया है। Then he is also mentioned the king of righteousness. और वो धार्मिकता का राजा ऐसे भी उसके लिए लिखा गया है। And he is also mentioned as priest of
the Most High God. और उसे परम प्रधान परमेश्वर का याजक कह के भी लिखा गया है, उसके बारे में कहा गया है। So in short, Melchizedek is described as a king and also as a priest. और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि मल्कीसदेक एक राजा और एक याजक दोनों ही यहाँ पर उसको उल्लेख किया गया है। So in the book of Hebrews, wherever Melchizedek is mentioned, Melchizedek is pictured as a type of Jesus Christ, as a picture of Jesus Christ. मल्कीसदेक को नए नियम में जहाँ कहीं उसका उल्लेख वर्णन किया जाता है, उसे यीशु के समान उसको दर्शाया गया है। You know, the Lord is also a king and also a priest. और हमारा प्रभु भी वो राजा है और वो याजक भी है। In Hebrews 7 verses 1 to 3, इब्रानियों 7 उसका 1 से 3 वचन। so Melchizedek is presented and compared with the Son of God, the Lord Jesus Christ. और मल्कीसदेक को परमेश्वर की संतान यीशु मसीह के साथ तुलना की जाती है। In verse 5 is mentioned the Melchizedek, king of Salem or king of peace, priest of the most high. When he met Abraham, he blessed Abraham. और वहां लिखा है कि परम प्रधान का याजक मल्कीसदेक अब्राहम राजाओं को मारकर लौटा जाता था, तो उसने उसको भेंट करके उसे आशीष दी। Whatever we read in Genesis chapter 14 is repeated. Same thing is in a kind of repeated. और उत्पत्ति 14 अध्याय के अंदर जो बातें हमने पढ़ी उसी को यहाँ दोहराया गया है। And so the writer of Hebrews is emphasizing the priesthood of Melchizedek is greater than the old covenant priesthood Levi. और यहाँ पर जो लिखने वाला, इब्रानी को लिखने वाला बताता है कि मल्कीसदेक का जो याजक पद जो है, पुराने नियम का जो लेवीय लोगों का याजक पद होता था उससे बढ़कर है। And about the Lord Jesus Christ mentioned that in the book of Hebrews that Jesus has been appointed as a priest or priest of the order of Melchizedek. और यीशु मसीह के बारे में भी लिखा गया है कि मल्कीसदेक की रीति के अनुसार यीशु मसीह को वो याजक पद दिया गया है। So in other words, he is highlighting that the priesthood of Jesus Christ is superior to the old covenant priesthood. और दूसरे शब्दों में यीशु मसीह का याजक पद जो है पुराने नियम के याजक पद से और बेहतरीन और अच्छा है, उस तरह से वर्णन किया गया है। For example, is a comparison between the old covenant priests. They demanded people to pay tithe. उदाहरण के रूप में पुराने नियम के याजक पद जो है वो लोगों से मांग करते थे कि वो अपना 10वां अंश दे। But in the new covenant, it is voluntary. It is a gift. लेकिन अब नए नियम के अंदर ये स्वेच्छा से है, ये एक तोहफे के जैसा है। Children of God are encouraged to give or gift, but there is no commandment that thou shalt tithe. और परमेश्वर के लोगों को देना एक स्वेच्छा से देने के लिए कहा गया है, लेकिन कई ऐसी आज्ञा नहीं है कि तुम्हें दशमांश देना ही है। Giving is a character of God. There's a lot of encourage to give. और बहुत देने के बारे में प्रोत्साहन है, ये परमेश्वर का एक चरित्र भी है। But not in the style of the old covenant, where people were just required to, in a legalistic way, just give 10% and rest 90% belongs to them. Not in that spirit. लेकिन पुराने नियम में जैसे देना था वैसे नहीं कि एक विधिवादी रूप से तुम्हारा 10वां अंश देना ही, उस रीति से अब नहीं देना है। That is why this Abraham also, in the example of Abraham and Melchizedek also, Melchizedek never demanded Abraham should give 10% of his spoil. और मल्कीसदेक ने कभी इस चीज की मांग नहीं की कि अब्राहम को उस लूट का 10वां अंश उसको देना ही, ऐसी मांग नहीं की। But Abraham, out of gratitude, voluntarily gifted to Melchizedek. लेकिन धन्यवाद से भरकर स्वेच्छा से अब्राहम ने उस लूट में से 10वां अंश मल्कीसदेक को दिया। Just like Melchizedek, if you compare Melchizedek and Jesus Christ, we can say the emphasis on he was a king of righteousness and he was a king of peace. और यहाँ पर यदि मल्कीसदेक यीशु मसीह को हम तुलना करते हैं तो वो धार्मिकता का राजा है और शांति का राजा है। And we can say righteousness and peace, it is met together in Jesus Christ. और यीशु मसीह में हम देखते हैं कि धार्मिकता शांति दोनों ही एक होते हैं।
Yeah, it is also mentioned about Melchizedek that is in verse 3, Hebrews 7:3. और 7 अध्याय के 3 वचन में भी मलकीसिदक के बारे में लिखा है There was no beginning or there was no end about it. और उसके बारे में कोई उसका अंत आदि नहीं है, ना उसके जीवन का कोई अंत है। Meaning in the book of Genesis, there is no genealogy of Melchizedek mentioned. और उत्पत्ति की पुस्तक में हम देखते हैं कि मलकीसिदक की कोई वंशावली को हम नहीं देख पाते हैं। In a way, it is a picture of the endless, that is similar to that of Jesus Christ. और वो वैसा ही प्रतीक है जैसे यीशु मसीह जो अनंत तक बना रहता है। We read there in verse 3, Melchizedek, without father, without mother, without a genealogy, and having neither beginning nor end of his life. और वहां लिखा है कि जिसका ना कोई पिता है, न माता, न वंशावली है, जिसके ना दिनों का आदि है, न जीवन का अंत है। Moving on, verses Hebrew chapter 7, verses 4 and 5. वचन 4 और 5 It mentions that Melchizedek was greater than Abraham the patriarch. और यहाँ पे इस बात पर ध्यान रखो कि वह कैसा महान था जिसको कुलपति अब्राहम से बढ़कर वो महान था। Because Abraham chose to give that tithe or that gift to Melchizedek. क्योंकि अब्राहम ने चुनाव किया वो स्वेच्छा से उस गिफ्ट व तोहफे को मलकीसिदक को दे। Verses 6 to 10 also. और 6 से 10 वचन को It says that priesthood of Melchizedek is superior to the old covenant priesthood. और वहां लिखा गया कि मलकीसिदक का जो याजक पद जो है वो पुरानी वाचा के अंदर जो याजक पद था उससे बेहतर और अच्छा है। He is using that example. It is Melchizedek who blessed Abraham. वहां लिखा है कि मलकीसिदक जो है उसने अब्राहम को आशीष दी। When Melchizedek went to meet Abraham, मलकीसिदक जब अब्राहम को मिलने जाता है he took some food and drink for Abraham and his servants. और वहां पे अब्राहम उसके सेवकों के दासों के लिए वो रोटी और दाखमधु लेकर जाता है। So Melchizedek actually went to give. He did not demand any gift or money from Abraham. और मलकीसिदक अब्राहम को देने के लिए जाता है, उससे किसी तोहफे या किसी लूट की मांग करने के लिए नहीं जाता है। And he is also king. Probably he did not want or expected anything from Abraham. और वहां पे वो राजा भी है, इसलिए वो किसी भी रीति से अब्राहम से कोई अपेक्षा नहीं करता है। Because he was not dependent on Abraham's gifts. क्योंकि वो अब्राहम के तोहफे के ऊपर निर्भर नहीं था। But he went to give. He went to give and nourish and refresh Abraham and also to bless him. और यहाँ पर वो जाता है देने के लिए ताकि उसको ताजगी से भर सके, उसको प्रोत्साहित कर सके। However, when Abraham offered voluntarily that gift, he graciously accepted. और जैसे अब्राहम ने दशवां अंश स्वेच्छा से उसको दिया तो अनुग्रहमय रीति से मलकीसिदक उसको ग्रहण करता है। So we see a dignity in the conduct of Melchizedek. और मलकीसिदक के व्यवहार के आचरण के अंदर एक अच्छी गरिमा को हम देख पाते हैं। We can see that is a dignity of a new covenant priest. और ये नए नियम के जो याजक जो है उसकी एक गरिमा है, उसका एक आचरण है। So that is a comparison that we see in the book of Hebrews chapter 7. और ये तुलना इब्रानियों 7 अध्याय में हम देखते हैं। The order of Melchizedek is a parallel to the new covenant priesthood. और मलकीसिदक का याजक पद जो है वो नए नियम के याजक पद के एक समान ही है। And the order of Melchizedek is superior to the old covenant order of priesthood. और मलकीसिदक का जो याजक पद जो पुराने नियम का पुराने वाचा का याजक पद है उससे वो बढ़कर है। We also understand when we read verses 11 to 13. 11 से 13 वचन जब हम पढ़ते हैं We read that the perfection would not come through the Levitical priesthood. और यहाँ पे याजकीय पद याजक पद है उससे सिद्धता नहीं आती है, ऐसा लिखा है। Yeah, and also Levitical priesthood, it is not a permanent priesthood. और लेवी याजक पद जो है वो पूरी तरह से कायम बने रहने वाला याजक पद नहीं है। Priest change. When one high priest died, another one will be selected, appointed. और एक महायाजक की मृत्यु हो जाती है उसके बाद दूसरा नया या महायाजक है उसकी नियुक्ति की जाती है।
But the priesthood of Melchizedek is the order of Melchizedek is continuous, eternal. लेकिन मलकीसिदक का जो याजक पद जो है वो निरंतर बना रहता है, वो अनंत काल के लिए है। And the writer using, because as this is addressed to Hebrews and Hebrew people are familiar with the Melchizedek, he is using the example Melchizedek to compare with the Christ. और यहाँ पर इब्रानी ऐसे लोगों को यहाँ पे लिख रहा है, जिन लोगों को जो मलकीसिदक के बारे में जानते हैं, इस उदाहरण को देने के द्वारा वो मलकीसिदक और यीशु मसीह की तुलना कर रहा है। We read a good, powerful expression in verse 16. 16 वचन में एक बहुत ही अद्भुत अभिव्यक्ति हम देखते हैं। We see that Melchizedek or otherwise Jesus Christ did not become the priest because of the physical, because they belonged to because of any physical requirement. और यहाँ पर मलकीसिदक हो या यीशु मसीह का याजक पद इसलिए नहीं दिया गया, वो इसलिए याजक पद में नहीं आए थे क्योंकि वो एक शारीरिक किसी परिवार के साथ या पृष्ठभूमि से आते थे, इसलिए नहीं था। Because the old covenant priesthood, it should come in that tribe of Levi. पुराने नियम का जो याजक पद जो था वो आपको लेवीय गोत्र जो है उसी से होना है। But Jesus priesthood is not according to any physical requirement. लेकिन यीशु मसीह का यह याजक पद जो है वो किसी भी शारीरिक उसके अंदर कोई आवश्यकता या जरूरत या नहीं है। Verse 16, it is emphasized, but he became a priest according to the power of an indestructible life. और यहाँ पर जैसे लिखा है कि जो शारीरिक आज्ञा की व्यवस्था के अनुसार नहीं, पर अविनाशी जीवन की सामर्थ के अनुसार वो नियुक्त किया गया है। It's good, little mentioning, little meditating on that expression, power of an indestructible life. और यहाँ पे जो शब्द लिखा गया है कि अविनाशी जीवन की सामर्थ के अनुसार उसे नियुक्त किया गया है। So in the new covenant, this is what the Lord is, what God is offering to us. और नए नियम के अंदर यही है जो परमेश्वर हमको प्रदान करता है, Power of an indestructible life. और एक अविनाशी जीवन की सामर्थ हमको वो देता है। The life which the Lord offers to us in the new covenant is, first of all, indestructible. नए नियम में परमेश्वर जो हमको जीवन जो देता है वो सबसे पहले अविनाशी जीवन है। Situations cannot destroy the inner life we received from the Lord. और परिस्थितियां, परमेश्वर जो हमको हमारे भीतरी जीवन में जीवन देता है, वो बाहरी परिस्थितियां उसको नहीं मिटा सकती है। We may face many challenges in our lives. बहुत सारी चुनौतियों का सामना हमारे जीवन में हम We may करते हैं, face many temptations. कई सारे परीक्षणों का सामना करते हैं, We may face many conflicts. और बहुत सारे संघर्षों का सामना हम करते हैं। So to say, many battles we may face in life. और बहुत हमारे जीवन के अंदर हम उस युद्ध, उन लड़ाइयों को उसका सामना करते हैं। God wants us to live out of the power of an indestructible life which is invested in us. और परमेश्वर चाहता है कि हम उस अविनाशी जीवन की सामर्थ के अनुसार, हम जो हमारे भीतर है उसके द्वारा हम जीवन जिए, उस सामर्थ के द्वारा। Yeah, it is indestructible, and it is especially mentioned power of an indestructible life. और यहाँ पे लिखा है कि वो अविनाशी है, उसको नाश किया नहीं, ऐसे अविनाशी जीवन की सामर्थ। There is a parallel in Romans chapter 8. रोमियो की पत्री 8 अध्याय Verses 1 and 2. Verse 1 we read, there is no condemnation for those who are in Christ Jesus. और पहला वचन, इसलिए अब जो मसीह यीशु में उन पर दंड की आज्ञा नहीं। And verse 2 we read, the law of the spirit of life in Christ Jesus has set us free from the law of sin and death. क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मसीह यीशु में मुझे पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया है। Yeah, just like what we read in Hebrews 7, the law of the spirit of life in Christ Jesus, that will set us free from the law of sin and death. और जीवन की आत्मा की व्यवस्था जो है वो हमें पूरी तरह से पाप और मृत्यु की व्यवस्था से आजाद करता है। We can also see another fundamental difference between these two priesthoods, old covenant priesthood and the new covenant priesthood. और एक अंतर हम पुराने नियम का याजक पद और नए नियम का जो याजक पद उसमें जो देख सकते वो ये है। Yeah, I already mentioned that in the old covenant,
the priest has to be from the descendant of Levi. और पुराने नियम के अंदर यदि आपको याजक होना है तो आपको लेवी के कुल से होना है। But Jesus is the guarantor of a better covenant by the power of an indestructible life. और जैसे हमने which was uncle? Verse 22. उसका 22 वचन हम पढ़ते हैं कि इस कारण यीशु एक उत्तम वाचा का जामीन ठहरा है। Yeah. So we can also see that in the Old Testament, to be a priest, one has to be part of that Levite tribe. और पुराने नियम में यदि आपको याजक पद का हिस्सा होना है तो आपको लेवी कुल से होना जरूरी है। But in the new covenant, by God's grace, there is no tribe. All of us can be part of being that priesthood. अब नए नियम के अंदर कोई कुल की आवश्यकता नहीं, हम सब उस याजक पद का हिस्सा हम सब बन सकते हैं। So the people could in the old covenant time, they could claim or boast that I am part of Levi tribe. पुराने नियम के अंदर यदि वो लेवी याजक से कुल से है तो उस पर वो घमंड कर सकते थे कि मैं तो एक लेवी कुल से आता हूँ। I am from a chosen tribe. I am from a high caste, in something in that kind. और मैं तो चुने हुए वंश या कुल से आता हूँ या ऊपरी कक्षा या उस जाति से मैं उस कुल से आता हूँ। So in the new covenant, there is no place for either to boast or feel inferior. और नए नियम के अंदर किसी चीज के ऊपर हम घमंड नहीं कर सकते, ना किसी कारण में हम अपने आप को छोटा महसूस नहीं कर सकते। All can be part of that priesthood. हम सभी उस याजक पद का हिस्सा बन सकते हैं, irrespective of whichever community or whatever we belong to. इसके बजाय हम कोई भी समुदाय से आते हो, कहां से भी हम आते हो। Because what matters is the power of an indestructible life that we are received from the Lord. लेकिन अविनाशी जीवन की सामर्थ्य जो है उससे ही फर्क जो हम प्राप्त करते उससे वो फर्क पड़ता है। So in the book of Hebrews chapter 7, in book of Hebrew, many times this expression, there is a particular expression. और यहाँ पे इब्रानियों 7 अध्याय के अंदर हम एक विशेष करके इस अभिव्यक्ति को देखते हैं। That is the order of priest according to the order of Melchizedek. और यीशु मसीह जो है मलकीसिदक के रीति के अनुसार एक याजक। We can read that again in verse 17. हम 17 वचन में इसको हम पढ़ते हैं। It is attested of him, you are a priest forever according to the order of Melchizedek. और तू मलकीसिदक की रीति के अनुसार युगानुयुग का याजक है। It is mentioned a priest forever and also according to the order of Melchizedek. और यहाँ पर तू मलकीसिदक की रीति पर युगानुयुग बना रहने वाला याजक है। So you can refresh what is that order of Melchizedek? What is the peculiarities of Melchizedek? और मलकीसिदक की यहाँ पे खास विशेषताएं क्या है? One is there was no end, there was no beginning, there was no end about him. पहला, उसका कोई आदि नहीं है ना कोई अंत है। He is mentioned as a king of peace. वो शांति का राजा उसकी तुलना की गई है। And he is mentioned as a king of righteousness. और धार्मिकता का राजा भी उसको कहा गया है। He was a king and he had the dignity of a king. वो एक राजा था, उसके पास एक राजा की गरिमा थी। And he is also mentioned as a priest of the Most High. और वहां पे परम प्रधान का एक याजक भी उसको कहा गया है। A priest means someone who would intercede for others. और याजक जो ऐसा व्यक्ति है जो किसी अन्य लोग के लिए मध्यस्थी करता है। And especially he silently appeared before Abraham. He blessed Abraham and just disappeared from the scene. और बहुत ही गुप्त रीति से शांति के साथ अब्राहम के सामने वो आता है, उसको आशीष देकर वहां से गायब हो जाता है। So we can say a priest according to the order of Melchizedek should have these characteristics. What we और जो हमने अभी देखा मलकीसिदक की रीति पर यदि कोई याजक है तो ये सारे गुण जो हमने अभी देखी है उसमें होने चाहिए। We pursue peace, righteousness. There is a dignity of a king.
और एक शांति उसमें होनी चाहिए, एक धार्मिकता होनी चाहिए और उसके अंदर एक राजा की गरिमा होनी चाहिए। We intercede for others, अन्य लोगों के लिए मध्यस्थी करने वाले होने चाहिए। and we will bless and we will refresh others, but all done silently and will disappear. हम औरों को आशीष देंगे, उन्हें प्रोत्साहित करेंगे, लेकिन ये सारी चीजें हम बहुत ही गुप्त रीति से हम करेंगे। We will not seek a glory or honor for our service. और हमारी सेवा के कारण हम किसी भी आदर को नहीं खोजेंगे। In verse 22, it is there is a statement which says that Jesus has become the guarantee of a better covenant. और 22 वचन में लिखा, इस कारण यीशु एक उत्तम वाचा का जामीन ठहरा। In the book of Hebrews, this word better is very often used. और यहाँ पर इब्रानियों की पुस्तक में बेहतर या उससे अच्छा, ऐसा ये शब्द का इस्तेमाल किया गया है अक्सर। Especially mentioning the new covenant is better than the old covenant. और खास करके नई वाचा पुरानी वाचा से बेहतर है। And the Lord has kept better things for us. परमेश्वर ने हमारे लिए बेहतर चीजें रखी हैं। So there is that better word is frequently used in the book of Hebrews. और इब्रानियों की पुस्तक में ये बेहतर शब्द अक्सर इसको ज्यादा इस्तेमाल किया गया है। That is something we can be grateful to the Lord in this time that we live. God has offered us, He's offering us something better. और ये हमारे जीवन में देख सकते कि परमेश्वर हमको कुछ बेहतर देता है, वो प्रदान करता है। So we also should always should have that insight. The Lord has called me for something better. और ये हमेशा चित्र हमारे सामने होना चाहिए कि परमेश्वर ने हमेशा मुझे कुछ बेहतर पाने के लिए बुलाया है। I should not be happy with my current life. और मैं कभी भी अपना जो वर्तमान जीवन है उससे संतुष्ट न हो जाऊं। I should pursue and desire that better thing which the Lord has offered to me. और जो परमेश्वर मुझे बेहतर चीजें देना चाहता है उसको पाने की मुझ में तीव्र इच्छा होनी चाहिए। So that is why Jesus is described as a guarantee for a better covenant. और इस कारण यीशु मसीह को एक उत्तम वाचा का जामीन कहा गया है। New covenant is a better covenant as compared to old covenant. और नई वाचा जो है वो पुरानी वाचा की तुलना में एक बेहतरीन या बेहतर वाचा वो है। And Jesus Christ is a mediator and he is the guarantor of that better covenant. और वो नई वाचा जो बेहतरीन वाचा है उसके लिए यीशु मसीह हमारा मध्यस्थ है और वो हमारा जामीन भी है। In our heart, we always should as God's children, we should sincerely desire and seek and pursue that life which the Lord has kept for us. और हमारे जीवन के अंदर ये बहुत ही सच्ची इच्छा होनी चाहिए कि परमेश्वर ने जो जीवन हमारे लिए रखा है उसको हम जिए। And never be happy with an old testament or old covenant level of Christian life. और कभी भी हमारे पुराने वाचा का स्तर का जीवन, जो मसीह जीवन जो है उससे हम संतुष्ट न रहे। Or that elementary level of Christian life. और वो बहुत ही मूलभूत जो होता है प्राथमिक बातें उससे हम संतुष्ट न रहे। Or that foundation level of Christian life. और जो नींव की जो बातें मसीह जीवन में तो उसी से हम संतुष्ट न रहे। You can say there are people who are just happy in being forgiven their sins. कुछ लोग होते हैं जिनके पाप क्षमा किए जाने के कारण वे आनंदित है। They have no desire to grow in godliness. और भक्तिमय जीवन जीने में कोई उनकी रुचि नहीं है। And they are happy with their life. और वे अपने जीवन से आनंदित है। Without any further desire to pursue Christ likeness, the character of Christ in their lives. और अपने जीवन में यीशु मसीह के समान बनने या उसके गुणों और चरित्रों को प्राप्त करने की कोई इच्छा उनमें नहीं है। So let this desire and that goal and aspiration be in our heart to aim or desire, pursue that better things the Lord has offered for us. और हमारे अंदर यही इच्छा, यही महत्वाकांक्षा, यही उद्देश्य हमारा होना चाहिए कि परमेश्वर ने जो उत्तम या बेहतरीन चीजें जो हमें प्रदान या वायदा उसने किया उस बातों को हम प्राप्त करने की खोज में रहे। In the passage 7:25 to 28. और 25 से उसी अध्याय का 25 से 28 वचन। There in verse 25 we read that he is able to save us forever, those who draw near to God through him, since he always
lives to make intercession for them. इसलिए जो उसके द्वारा परमेश्वर के पास आते हैं वह उनका पूरा पूरा उद्धार कर सकता है, क्योंकि वह उनके लिए विनती करने को सदा सर्वदा जीवित है। In another version, it is mentioned that he is also able to deliver us to the uttermost. और दूसरा यहाँ पे लिखा गया है कि वह उनका पूरा उद्धार, संपूर्ण उद्धार कर सकता है। So the word save is used and the word deliver is used. और यहाँ पे बचाना या फिर उद्धार करना शब्द लिखा गया है। Meaning is there is no limit where the Lord can help us. और इसका मतलब कि ऐसी कोई सीमा नहीं, मर्यादा नहीं कि परमेश्वर हमारी सहायता न कर सके उसके बाहर जाके। Whatever is our situation, the Lord can deliver us to the uttermost. हमारी परिस्थिति चाहे कैसी भी क्यों न हो, परमेश्वर उन सारी बातों से हमको पूरा पूरा हमारा उद्धार कर सकता है, छुड़ा सकता है। And he can save us forevermore. और वो हमेशा हमारे लिए वो उद्धार का काम वो हमारे लिए करेगा। We can apply in whatever may be the intense temptation that we are facing. और ये हमारे जीवन में हम लागू कर सकते हैं, कितने ही ज्यादा तीव्र प्रलोभनों का हम सामना क्यों न करते हो। I remember in my own life when this word sometime I have declared, proclaimed, Lord, your word says that you will deliver me to the uttermost. मेरे जीवन में याद करता हूँ, मैंने ये वचन को मेरे जीवन में इस प्रकार घोषणा की कि प्रभु तू मेरे जीवन के अंदर मेरा पूरा पूरा बचाव उद्धार कर सकता है प्रभु मेरा। So that is a promise we can claim in our life situations. और ये हमारे जीवन की परिस्थितियों के अंदर एक प्रतिज्ञा है जिसका हम दावा कर सकते हैं। We may think we are in a pit, we are in a helpless situation. हम सोच सकते हैं कि हम तो एक गड्ढे में हैं, हम बहुत ही असहाय रूप से हम यहाँ पर पड़े हुए हैं। My situations are not favorable. अब मेरी परिस्थिति तो बिल्कुल भी सही नहीं है या अच्छी नहीं है। My temptation is so strong. और मेरे जो प्रलोभन है, परीक्षण जो इतने ज्यादा मजबूत है। But we have this promise that the Lord can deliver us to the uttermost. लेकिन हमारे पास परमेश्वर का ये प्रतिज्ञा है कि परमेश्वर उनका पूरा पूरा उद्धार कर सकता है। Only need is we should draw near to him. और यही आवश्यकता क्या है कि हमें केवल परमेश्वर के समीप, उसके पास जाना है। In other words, we should be humble enough to recognize our need and cry out to him. और दूसरे शब्दों में हम इतने नम्र होने चाहिए कि हम परमेश्वर के सामने हमारी जरूरत को मानकर उसको पुकार सके। Following the same example of Jesus, when he cried vehemently to the Father to deliver him. और जैसे यीशु मसीह ने ऊंचे शब्द से पुकार कर पिता से जो उसको छुड़ा सकता है, उससे उसने प्रार्थना की। And his prayers were answered. That is what we read. और यही हम पढ़ते कि उसकी प्रार्थनाएं सुनी गई। So when we cry out to the Lord in any situation, the Lord can deliver us to the uttermost. हमारे जीवन की किसी भी परिस्थिति में जब हम परमेश्वर को पुकारते हैं, तब परमेश्वर उस परिस्थिति में से हमारा पूरा पूरा संपूर्ण उद्धार कर सकता है। That's a promise we should always need to cling on. और ये एक परमेश्वर की प्रतिज्ञा, वायदा है जिसको हमको पूरी तरह से जकड़े रखना है। Another thing we read there is Jesus lives to make intercession for us in heaven. और यहाँ पर यीशु मसीह एक वायदा ये भी है कि यीशु मसीह स्वर्ग में हमारे लिए एक मध्यस्थी का काम करता है। On the other hand, devil is in the business of accusing us. और दूसरी ओर हम देखते कि शैतान जो है वो लोगों को दोषित या दंडित करने के काम में लगा हुआ है। In the book of Revelation, devil's name is mentioned that he is the accuser of the brethren. और प्रकाशित वाक्य शैतान के बारे में लिखा गया कि वो तो भाइयों का ऊपर दोष लगाने वाला है। We should never side with the devil and accuse others. और हमें अन्य लोगों को दोषित करके हमें शैतान की ओर नहीं जाना है। And we should also not receive the accusation or condemnation from the devil. और यहाँ तक कि हमें शैतान की ओर से कभी भी दंड की भावना या दोष की भावना को स्वीकार भी नहीं करना है। On the other hand, we should remember the Lord is day and night interceding for me. और हमें दूसरी ओर याद रखना है कि हमारा प्रभु दिन रात मेरे लिए मध्यस्थी करता है। So we who are following Jesus Christ also have a responsibility to intercede for others. और हम जो यीशु मसीह का अनुसरण करते, हमारी भी एक जिम्मेदारी बनती है कि हम अन्य लोगों के लिए मध्यस्थी का कारण बने, उनके लिए मध्यस्थी करें। Or in other words, we can pray for others. दूसरे शब्दों में हम अन्य लोगों के लिए प्रार्थना करें। We should never be in the business of accusing others without reason.
और किसी भी कारणवश हमें अन्य लोगों को दोष या दंड की भावना के काम में अपने आप को नहीं लाना है। In verse 26, we read also about the absolute purity of Jesus Christ as a man. और यहाँ पर हम देखते हैं यीशु मसीह जो एक मनुष्य है, उसके अंदर पूरी शुद्धता या पवित्रता जो है उसके संबंध में देखते हैं। He is mentioned as a high priest, holy, innocent, undefiled, separated from sinners, and exalted above the heavens. और वहां लिखा है कि वो ऐसा महायाजक जो योग्य है, पवित्र, निष्कपट, निर्मल, पापियों से लोग स्वर्ग से भी ऊंचा किया हुआ है। Yeah, there was no trace of sin in him, कोई पाप unconscious. का नहीं हो। He lived a perfect life on earth, और पृथ्वी के ऊपर, धरती पर उसने एक सिद्ध जीवन जिया। but he was tempted, लेकिन उसकी वो प्रलोभन में वो परीक्षा उसकी हुई, just like we all are tempted. और जैसे हम भी प्रलोभन में पड़ते हैं। But he never even once yielded to the temptation. लेकिन कभी भी एक बार भी उसने उस प्रलोभन की अधीनता में अपने आप को नहीं किया। And in the one last thing we read is again a comparison. In the old covenant time, the priests had to frequently, year after year, offer sacrifice for their own sins and also for the sin of the people. और वहां पर हम देखते कि पुरानी वाचा के अंदर उस याजक को प्रति वर्ष उस बलिदान को चढ़ाना पड़ता था, पहले अपने आप के लिए और फिर लोगों की प्रस्तुत करने के लिए। But whereas Jesus, he offered himself, his body as a sacrifice just once. और लेकिन यीशु मसीह के बारे में लिखा है कि उसने अपने आप को एक बार ही बलिदान करके चढ़ा दिया, एक ही बार में सब कुछ निपटा दिया। So it is good to recognize and have an understanding about the or the old covenant priesthood and the new covenant priesthood. और ये बात अच्छी है कि हम इसको जाने और समझ को रखें कि पुरानी वाचा का जो याजक पद है और नई वाचा का याजक पद क्या है। The new covenant priesthood is according to the order of Melchizedek. और नई वाचा का याजक पद जो है वो मलकीसिदक की रीति के अनुसार है। And we can pursue such a life in our own lives. और ऐसा जीवन की इच्छा और खोज हमारे जीवन में भी हम कर सकते हैं। Instead of as we can picture that when Abraham was needy, tired, and weary, and suddenly Melchizedek appeared. और जैसे हम इस बात की कल्पना कर सकते हैं, युद्ध से लौटने के बाद अब्राहम बहुत ही थका मांदा बैठा हुआ है वहां पर, अचानक से मलकीसिदक वहां पर उसके सामने आता है। And he refreshed Abraham with that food and drinks. और उसके बाद उसको रोटी देता है, दाखमधु देता है, उसको तरोताजा करता है। And not only that, he blessed Abraham. लेकिन उतना ही नहीं, लेकिन वो अब्राहम को आशीष भी देता है। After blessing, he disappeared. और आशीष देने के बाद वहां से वो चले जाता है, गायब हो जाता है। So in one way, we can also, this is what is in heart. The order of Melchizedek also means being a silent, being a person who silently bless others. और यहाँ पर मलकीसिदक की रीति के अनुसार हम ऐसे व्यक्ति बन सकते हैं जो शांत या गुप्त रीति से अन्य लोगों को आशीष देते हैं। See, we can also make our presence felt in many ways. और हो सकता है कि हम अपने आप का अस्तित्व या मैं वहां पर मौजूद हूं, मैंने अपने संबंध में वहां पर जता सकते हैं। We can discreetly advertise the good things that we are doing. और बड़े ही उत्तम रीति से है यह है, बड़े हम अन्य लोगों को हमने जो भला किया है उसको हम जाहिर करके दिखा सकते हैं। And even boast about it. और उसकी बड़ाई भी कर सकते हैं। But Melchizedek, the order of Melchizedek is very different. लेकिन मलकीसिदक का महायाजक पद जो याजक पद जो है वो बहुत ही अलग है। He appeared when there is a need unexpectedly. और एक अपेक्षा नहीं की थी ऐसे समय में जब जरूरत थी, वहां पर वो आता है। He met the need and disappeared from the scene. उस जरूरत को पूरा करता है और वहां से वो चले जाता है, गायब हो जाता है। That is something that we can seek in our own lives. और यही हमारे जीवन के अंदर भी हम इसकी खोज कर सकते हैं। Let our presence be a source of blessing and comfort and strength, refreshing time for others. और हमारी उपस्थिति अन्य लोगों के लिए उनके जीवन में उनको प्रोत्साहन देने वाला, सांत्वना देने वाला, उनको तरोताजा करने वाला हो सके।
And all that we can learn to do in a discreet way, not seeking publishing or advertising houses. और ये सारी चीजें बहुत ही गुप्त रीति से करें, न कि लोग इसको देखे, जाहिर में हम इनको बताते हुए इस रीति से हम ना करें। I just want to also say when Melchizedek blessed Abraham, refreshed Abraham, and went back, it had a profound effect on Abraham. जब मलकीसिदक आकर उसको मिलता है, उसको तरोताजा करता है, आशीष देता है, इसका अब्राहम के बाद अब्राहम के ऊपर बहुत ही बड़ा असर पड़ता है। Because we read that in Genesis chapter 14, और उत्पत्ति 14 अध्याय के अंदर इसको हम पढ़ते हैं 21 onwards. 21 से आगे। Soon after Melchizedek left Abraham, अब मलकीसिदक जाने के बाद the king of Sodom offered to Abraham. King of Sodom told Abraham, Abraham, it is you who fought and brought back everything back. और यहाँ पर अब्राहम से वो कहता है कि तू सब कुछ युद्ध करके सब कुछ वापस लेकर आया है। He said, you just return to me my people, my family, and all the wealth you can take it. और तू मेरे लोगों को दे दे, और सारा जो तुम्हारा जो संपत्ति जो धन जो है, लूट जो है, वो तू ले ले। It is you, Abraham, who fought for my sake. और क्योंकि तूने अब्राहम मेरे लिए इस युद्ध को किया है। Abraham's reply to king of Sodom is very remarkable. Very often this has challenged me. और सदोम के राजा को जो अब्राहम प्रत्युत्तर यहाँ पर देता है, बहुत ही चुनौती मुझे कई बार ये देता है। In verse 22, Abraham is saying, 22 वचन में अब्राहम सदोम के राजा से कहता है, I have sown to the Lord Most High, possessor of heaven and earth. कहता है कि परम प्रधान परमेश्वर जो आकाश और पृथ्वी का अधिकारी है। First of all, Abraham is recognizing that God is the God Most High, and He is the possessor of heaven and earth. और ये पहले वो जान लेता है कि सबसे पहले परमेश्वर परम प्रधान है और आकाश और पृथ्वी का अधिकारी है। These words are almost same words which Melchizedek used to bless Abraham. और ये वही शब्द है जिसको मलकीसिदक ने अब्राहम को आशीष देने के लिए इस्तेमाल किए थे, उसी शब्द से ये मिलते हैं ये शब्द। So when Melchizedek blessed Abraham, Abraham himself received that insight. My God is the Most High. He is the possessor of everything. और जब मलकीसिदक ने अब्राहम को आशीष दी होगी, उसने उस प्रोत्साहन को हम उसके भीतर ग्रहण किया होगा इस रीति से कि मेरा परमेश्वर परम प्रधान और पृथ्वी का अधिकारी है। And he is my provider. और वो मेरा पूरा करने वाला है। Because he owns everything. और क्योंकि उसी का सब कुछ है, वो सारी चीजों का मालिक है। And then he is saying, I will not take even a thread or even a shoelace which belongs to you. और जो कुछ तेरा है उसमें से न तो मैं एक सूत और न कि एक जूती की बंधन में मैं लूंगा उससे। So that is a very strong stand which Abraham took. और अब्राहम यहाँ पे बहुत ही मजबूती के साथ इस निर्णय को यहाँ पर करता है। Even though Abraham fought and brought back all this wealth of king of Sodom, he did not covet for getting those things. और यहाँ पर वो सारी युद्ध करके उन सारे धन को, संपत्ति को, प्राणियों को लेकर आता है, लेकिन फिर भी उस राजा उसकी कोई लालसा वो नहीं करता है उसको प्राप्त करने की। He had no desire to receive something that belonged to others. और अन्य लोगों का जो वो था संपत्ति, उसको प्राप्त करने की उसमें कोई इच्छा नहीं थी अब्राहम में। And he is also saying, because I fear you would one day say that I have made Abraham rich. और वो अब्राहम कहता है कि आगे कहीं तो ऐसा न कहने पाए कि अब्राहम मेरे ही कारण धनी हो गया। I never want to give you that opportunity to say that king of Sodom made Abraham rich. मैं कभी भी तुझे ये अवसर या मौका नहीं देना चाहता कि ऐसा कहा जाए कि सदोम के राजा ने अब्राहम को धनवान बना दिया। On the other hand, he was saying, I only want God to say that God made Abraham rich. If at all God wants to make Abraham rich. और दूसरी ओर वो ये चाहता था कि यदि परमेश्वर चाहे अब्राहम, तो उसके बारे में ये कहा जाए कि अब्राहम परमेश्वर के कारण ही अब्राहम धनी हुआ है, ऐसा कहा जाए। That's a strong encouragement for us to free our lives from covetousness or desiring things what we see in others' lives or other families, etc. और ये बहुत ही मजबूती के साथ हमारे लिए प्रोत्साहन है उन बातों से, उस लालच से आजाद होने के लिए जो हम अन्य लोगों में, अन्य परिवारों को अंदर हम देखते हैं, उसकी लालसा हम करने लग जाते हैं।
Just like Abraham, for our needs, we should learn to look to him, not to a man. और अब्राहम जैसे अपनी जरूरतों के लिए केवल परमेश्वर की ओर देखता है, वैसे ही हमें केवल परमेश्वर की ओर अपनी जरूरतों के लिए देखना है, मनुष्य की ओर नहीं। Not our attention should not be on a rich people who have money, anything. और हमारा ध्यान किसी धनवान लोगों के ऊपर नहीं होना चाहिए जिनके पास पैसा है, सारी चीजें हैं। Our our attention should be on the Lord, who is a provider, who will richly provide us all things to enjoy. लेकिन हमारा ध्यान पूरी तरह से परमेश्वर के ऊपर होना चाहिए, जो बहुत ही अपनी बहुतायत से हमारी जरूरत को पूरा करेगा वो। So may God help us, and we can also pursue to live a life according to the order of Melchizedek. और प्रभु हमारी सहायता करे कि मलकी सिदक की रीति के अनुसार, उस याजक पद के अनुसार का जीवन हम भी हमारे जीवन के अंदर जी सके। Amen. आमीन।